Hello guys, good morning. Today we see the next topic in this chapter, fundamental of units. Previously we discussed about the type of cells, prokaryotic cell and eukaryotic cells. Today we discuss about the structure of cells. In it we here mention some points related to the study of structure of cells, that is the shape of cell, size of cell, volume of cell and the detailed structure of cell, that consisting of some of the components, that is the cell membrane, cell cytoplasm and nucleus are there. As we mentioned here in that the cell, there is a cell wall, is the outermost wall layer of the cell that is actually present in the plant cell. So we can't mention in here, but we explain that one is later on when we explain the plant cell structure is there. Now as you see the structure of cells, अब अपन यहाँ देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर में सेल का शेप कैसे होता है. शेप ऑफ द सेल्स, सेल शेप आर वेरीड, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज को लेकर अलग अलग शेप. शेप मतलब उसका आउटर बॉर्डर मार्जिन होता है. जैसे कुछ स्फेरिकल होगा तो कुछ इलोंगेटेड होगा, रॉड शेप होगा, तो कुछ पॉलीगोनल होगा, कुछ हेक्सागोनल होगा, कुछ फाइब्रस होगा. ऐसे अलग अलग तरीके के सेल्स आप लोगों को मिलेंगे अलग अलग एनिमल्स के अंदर. एज पर देयर फंक्शंस एंड देयर पोजीशन इन द बॉडी, द सेल शेप इज चेंज. सेल शेप इज चेंज. एज यू नो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल शेप, as you observe the unicellular organisms like amoeba. Amoeba's shape are irregular in one. Irregular in one means having such type of extra outgrowths onto their body surface are there. Such type of irregular shaped cells are found in the amoeba. Then as we know the paramecium, that is the slipper shaped cells, unicellular organisms. As you know some bacteria are there in them, the prokaryotic cells without the presence of nucleus, that one is having various shapes such as rod shape, spirillum shapes, spiral shapes, then somewhat spherical shapes are there. In that the way अलग अलग फॉर्म आप लोगों को सेल के मिलेंगे वो छोटे ऑर्गेनिज्म में. वैसे आप बड़े ऑर्गेनिज्म में जाओ, आपके बॉडी में जाओ, तो आपके बॉडी में जैसे ब्लड सेल को अपन ऑब्जर्व करते हैं ब्लड स्मीयर में, तो आपको दिखाई देता है कि रेड ब्लड सेल्स, जैसे अपन इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो वो जो होते हैं बाइकॉन्केव स्फेरिकल शेप सेल्स होते हैं. और वाइट ब्लड सेल में देखे जाए तो वाइट ब्लड सेल का साइज जो है, शेप जो है वो अलग अलग होता है. समवॉट सुडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं. तो अलग अलग शेप, जैसे नर्व सेल देखोगे आप नर्वस टिश्यू के अंदर में जाके, तो उसमें एक बॉडी रहेंगी और एक टेल लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर रहेगा. ऐसे अलग अलग शेप आपको सेल के मिलेंगे. सो वी कॉल्ड हियर द सेल शेप इज वेरिड इन शेप. वेरिड मीन्स different shapes as per the position of the cells in the body, or as per the living organisms in the universe, or as per the functions of the cells are there, the cell shape is changed. This one is about the shape of the cells are there. As we write this one is in few forms are there. As we mentioned the shape of the cell, how we write here, the shape of cell is somewhat spherical in shape, polygonal in shape, hexagonal in shape, oval in shape, or elongated, tubular in shape and so on. ऐसा अपन इसके लिए बोल सकते हैं. irregular in shape, ये सब चीज़ें अपन इसमें मेंशन करते हैं. और फाइनली ये कहेंगे इसको कि द सेल शेप इज वैरिड इन फॉर्म. कैसा है ये? वैरिड इन फॉर्म सेल शेप है. उसके बाद में आती बारी साइज की आती है. सेल का साइज कैसे होना, शेप ये हो गया, साइज कैसे होता है. तो साइज में आल्सो साइज ऑफ द सेल, साइज मीन्स द मेजरमेंट ऑफ दैट द सेल्स आर देयर. जैसे अपन उसको मेजरमेंट करेंगे लंबाई चौड़ाई वगैरह, तो ये हो गया उसका साइज, ये हो गया उसका साइज. तो साइज में क्या करते हैं अपन, साइज अगर किसी सेल का गिनने चलो आप, तो वो आपको अलग अलग टाइप के सेल में अलग अलग साइज भी दिखाई देगा. जैसे शेप अलग अलग होता है वैसे साइज भी अलग होता है. As we observed, the smallest prokaryotic cells are there. That one is having
the very much smaller size cells are 0.2 to 0.5 millimicron in its diameter. इतना ही छोटा होता है 0.2 to 0.5 मिलीमाइक्रोन, 0.2 to 0.5। ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। और छोटी सेल, सबसे छोटी सेल देखा जाए तो, और बड़े से बड़ी सेल देखा जाए तो 18 मिलीमीटर इन इट्स डायमीटर, ऐसा भी कहते हैं। सेंटीमीटर भी छोड़ो, अभी मिलीमाइक्रोन छोड़ो, तो क्या हो गया ये 18 सेंटीमीटर्स इन इट्स डायमीटर्स आर देयर। इतना बड़ा सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल यू नो द ऑस्ट्रिच एग जो होता है, तो इतना 12 से 18 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। इतना बड़ा एग्स भी आपको मिलता है। तो ऐसे ही सेल के साइज जो है चेंज होते हैं, बदलते जाते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। प्लांट का सेल होगा तो प्लांट के सेल के साइज कुछ अलग रहेंगे, एनिमल का सेल होगा तो एनिमल के साइज के सेल भी अलग होंगे। जैसे प्लांट में भी बड़े से बड़े सेल बोले तो आप लोगों को साइकस ओविल मिलेगा। जिम्नोस्पर्म ग्रुप में साइकस नाम का प्लांट है, तो वो साइकस का जो ओविल होता है वो सबसे बड़ा होता है। ओविल बोले तो एक सिंगल सेल होती है, तो इस हिसाब से उसका भी साइज प्लांट केस में सबसे बड़ा है। तो एनिमल केस में ऑस्ट्रिच एग्स का साइज सबसे बड़ा है। तो इस हिसाब से आपको साइज में भी वेरिएशन मिलेगा। बट इन नॉर्मल केसेस, एज वी नोज द प्रोकैरियोटिक सेल इज 0.2 to 0.5, but as we know the eukaryotic cells are there, that is actually 1 to 10 millimicron in its diameter। कितना रहता है नियर बाय 1 to 10 मिलीमाइक्रोन, उससे भी छोटे होते हैं मगर 1 to 10 मिलीमाइक्रोन। So as per their size, we can't observe all cells by our naked eyes. Though that one is the cell size is in micronic structures are there, microscopic structures are there, that we observe under the microscope. And though that one is larger in size, such as the eggs of ostrich or the ovule of cycas, that we observe by our naked eyes। अपन अपनी खुली आंखों से जो बड़े वाले सेल है साइज से उनको देख सकते हैं, मगर जो कुछ छोटे वाले सेल है जैसे माइक्रोस्कोपिक है उनको अपन अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनको अपन को माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसलिए इसका साइज भी क्या है बोल सकते हैं अपन, वेरिड इन साइज। आप रेंज लिख सकते हो इन स्मॉलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म 0.2 to 0.5 मिलीमाइक्रोन इन इट्स डायमीटर में, और आप उसको 1 to 10 मिलीमाइक्रोन इन डायमीटर आप यूकैरियोटिक में लिख सकते हो। ऐसे दोनों पहले टाइप देखे थे अपन ने, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उस हिसाब से उनके सेल साइज छोटा से छोटा लेकर बड़ा से बड़ा। आप अगर बोलोगे कि सर यहाँ से लेकर अपन यहाँ तक, तो भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.2 to 18 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेरियस शेप्स एंड वेरियस साइजेस ऑफ दैट द सेल्स आर देयर। दिस वन इज द थिंग्स ऑफ शेप एंड साइज। द नेक्स्ट टर्म इज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तीसरी टर्म क्या आती है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सेल। वॉल्यूम बोले तो क्या होता है, जैसे कि वजन एक आधी चीज़ का करें अपन तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। 2 ग्राम 3 ग्राम मिलीग्राम जो भी है इसमें इसको वॉल्यूम बोलते हैं। आल्सो हियर द सेल वॉल्यूम इज डिफर एज पर देयर फंक्शंस और पोजिशन और द एनिमल्स बॉडी आर देयर। नाउ साइज के हिसाब से उसका वॉल्यूम रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का कोई अगर स्ट्रक्चर अपन देखें। फॉर एग्जांपल वी कंसिडर 2 to 3 एनिमल्स आर देयर एंड देयर लिवर सेल्स और लंग सेल्स आर देयर। उनके अगर जैसे एलिफेंट है, बड़ा एनिमल है, डॉग्स है, मंकी है, ये छोटे एनिमल्स है, तो अगर उनके अपन सेल निकाल के उसी पर्टिकुलर ऑर्गन के देखेंगे तो देयर साइज और देयर वॉल्यूम इज एक्चुअली सेम इज देयर। उनका साइज जितना जैसे रहेगा उसी हिसाब से उनका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, क्योंकि ऑर्गन सेम है। एनिमल बड़ा ही चाहे बड़ा हो, तो इसमें एक्चुअली क्या बनता है, बड़ा एनिमल के सिवा और छोटा क्यों रहा, क्योंकि बड़े एनिमल में सेल के नंबर बढ़ गए एज पर देयर साइज, और छोटे एनिमल में सेल के नंबर कम हो गए। मतलब इसका ये नहीं कि उसका सेल का वॉल्यूम बढ़ा और सेल के नंबर सेम है सभी में, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो गया कि वो बड़ा छोटा हो गया। पर ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन के अगर सेल स्टडी करें आप लोगों ने तो उसमें वॉल्यूम आपको कैसे दिखेगा, सेम दिखेगा, भला चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा एनिमल हो। वैसे ही प्लांट के अंदर में भी है, प्लांट के अंदर में भी सभी सेल का वॉल्यूम सरीका होता नहीं है, फिर भी एज पर देयर रोल, एज पर देयर स्ट्रक्चर, एज पर देयर साइज, देयर वॉल्यूम इज आल्सो वेरिड। इसलिए अपन यहाँ भी बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सेल इज आल्सो वेरिड। आप लोगों को दो ही चीज़ें मोस्ट ध्यान में रखना पड़ता है, शेप और साइज में, तो ये दो चीज़ें थरोली आप करके रखो। वॉल्यूम का क्या है, तो वॉल्यूम ये कम ज़्यादा होता है, मगर सेम ऑर्गन में डिफरेंट एनिमल्स में उसका वॉल्यूम कैसे रहता है, एक्चुअली सेम ही रहता है। एनिमल बढ़ने से
वॉल्यूम नहीं बढ़ता है सेल का, तो एनिमल बढ़ने से, बड़ा होने से उस सेल की नंबर बढ़ती है, इसलिए बॉडी का फ्रेमवर्क भी बड़ा हो जाता है। ये थोड़ी सी बात ध्यान करने लायक है, ध्यान में रखने लायक है। ये हो गए जनरल फॉर्मेट अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। अपन अब जाते हैं कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है? एज यू ऑब्जर्व दिस सेल्स, previously we drawn the cell of prokaryotic, here we drawn the cell of eukaryotic. You know very well the prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cells are those in there is a complete absence of this internal cell organelles are there. न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी के सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, ये अगर निकाल दिया जाए अपन लोगों ने तो उसको अपन प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। मगर कुछ उनके स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे अपन बोलते हैं न्यूक्लाइड, वो वगैरह उसमें होता है, न्यूक्लिक मटेरियल में न्यूक्लाइड होता है, वो होता है जो कि जेनेटिकल मटेरियल कहते हैं, या कुछ स्मॉलर बॉडी जैसे रिबोसोम वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें होती है। उस प्रीवियस पीरियड में अपन ने वो देखा था। अभी अपन एक सिंपली यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो इस यूकैरियोटिक सेल को जब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने जानबूझकर ही यहाँ प्लांट का सेल निकाला है, भलाई चाहे यहाँ मैंने सेल वॉल नहीं लिखा होगा, तो भी सेल वॉल में अपन पढ़ेंगे इसमें से। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, एक डी बोले तो सेल वॉल, मगर ये पहला लिखना चाहिए था अपने, बाद में इसको लिख दें, कोई बात नहीं, इसको अपन समझाते समय सीक्वेंस से ले लेंगे। ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो सेल का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करते समय ये मेजर 3 हेडिंग है, वैसे भी ये प्रेजेंस है तो है, जैसे प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो सेल वॉल के लिए अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लांट या एनिमल सेल को लेकर। तो प्लांट सेल है तो सेल वॉल है, एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं है। तो बट ये 3 जो चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दोनों टाइप के सेल में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी होते हैं। इसलिए इसको अपन पूरा डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं, एक एक पार्ट को। एक अभी तो सभी नहीं होगा, कुछ पार्ट में इसमें इस ग्रेड में अपन ये कवर कर लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है कैसे होता है, एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन की तरफ चलते हैं अपन। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या है एक्चुअली, द आउटर मोस्ट protective membrane or layer of the cell is known as the cell. Commonly we call the cell membrane. The outermost protective membrane of the cell or layer of the cell is known as the cell membrane. जो कि सबसे बाहर वाला लेयर होता है। अभी यहाँ प्लांट सेल होने की वजह से मैंने सेल वॉल बता दिए, मगर ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है अंदर की ब्लू कलर वाली, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। अपन ने इसलिए डॉटेड बताया कि दिस वन इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेल मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, ये सेमी परमिएबल इन नेचर। फंक्शन केस में देखेंगे अपन अलग अलग फंक्शन क्या होते हैं, नेचर हो गया ये सेमी परमिएबल नेचर है। तो कैसा रोल करते हैं सेमी परमिएबिलिटी के लिए, वो अपन बाद में देखेंगे। तो पहले अपन सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ द सेल, ऐसा अपन बोल सकते हैं। और उसके बाद में अपन ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन मेनली प्ले ए रोल टू सेपरेट द सेल साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट टू दैट ऑफ ए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाह्य वातावरण से आंतरिक वातावरण को अलग करने का एकमेव जरिया बोले तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये मेन है, इसलिए अपन सेल कहते हैं उसको। नहीं तो बाह्य परिसर में भी आप देखते हो, आपके आउटर साइड में भी कुछ ना कुछ केमिकल कंपोनेंट है, एयर है, सब कुछ है, मगर इसको मेम्ब्रेन को अंदर लेके मेम्ब्रेन ने कुछ कंपोनेंट्स को अपने आप में बंद कर लिए है, तो इसलिए इसको मेम्ब्रेन का नाम दिया गया, इसलिए इसको अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर थोड़ा देखा जाए कैसे नेचर है इसका, सेमी परमिएबल नेचर, वो उसके फंक्शंस के मुताबिक उसका एक नेचर होता है। सेमी परमिएबल मतलब क्या, परमिएबल मतलब क्या, सेमी परमिएबल मतलब क्या, इम्परमिएबल मतलब क्या, ऐसे 3 टर्म आते हैं। सेमी, पहले अपन एक एक को क्लियर करते हैं। जैसे अपन पहले लेंगे कि परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन वो है जो कि सभी चीज़ों को, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों चीज़ों को अलो करता है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाने के लिए। जैसे पानी के बूंद भी वो भी आएंगे, या कोई सॉलिड पार्टिकल है वो भी इससे पास आउट हो जाएंगे, इसको अपन बोलते हैं परमिएबल। इट अलोज बोथ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हो गया, इट अलोज ओनली द सॉल्वेंट नॉट द सॉलिड पार्टिकल। ये ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अलो करते हैं, सॉलिड को नहीं। जैसे अपन ने पानी लिए, पानी में मट्टी डाल दिए और मट्टी को छान लिया अपन ने, तो छानते समय अगर वो, जैसे पानी फिल्टर होता है तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, तो उस समय में ऐसा ही वो ये मेम्ब्रेन है, वो किसी सॉलिड पार्टिकल को मेम्ब्रेन को पास करा के एक साइड से दूसरी साइड तक आने नहीं देंगे। जैसे किसको आने देंगे, फिर वो जो भी डिसॉल्व आयनिक फॉर्म में सॉलिड पार्टिकल है, मतलब सॉल्यूशन में है, वो खाली अलो करेंगे।
इसलिए कहते हैं इट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट नॉट द सोल्यूट पार्टिकल। ये हो गया सेमी परमेबल। तीसरा पार्ट अपना जो है वो है इम्परमेबल। इम्परमेबल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को नॉट द सोल्यूट नॉट द सॉल्वेंट, सोल्यूट भी नहीं और सॉल्वेंट भी नहीं, किसी चीज को वो अलो नहीं करेगा एक साइड से दूसरी साइड के तरफ जाने के लिए, उसको बोलते हैं अपन इम्परमेबल। जैसे कि आप प्लास्टिक ले सकते हैं, प्लास्टिक का जो मेम्ब्रेन बनाएंगे आप, प्लास्टिक में पानी भी डालेंगे या कुछ शक्कर भी डालेंगे डिजोल्व करा के, तो भी वो पानी एक साइड से दूसरी साइड तक नहीं जाएगा, वो हो गया इम्परमेबल। समझ में आ गया? फिर 3 कंडीशंस, परमेबल, सेमी परमेबल, इम्परमेबल। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा है अपना? सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल। कैसा मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल। सेमी परमेबल नेचर इसका। इट अलाउज ओनली द सॉल्यूट पार्टिकल नॉट द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉरी इट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल नॉट द सोल्यूट पार्टिकल्स आर देयर। ये हो गया सेमी परमेबल नेचर, ऐसा होता है ये। अब थोड़ा केमिकल नेचर देखते हैं अपन। तो केमिकल अगर नेचर, कोई भी चीज अगर होती है तो वो किसी ना किसी केमिकल से बनती है उसका, इसलिए अपन बोलते हैं कि केमिकल नेचर। मोस्टली वी कॉल्ड इट द सेल वॉल, सॉरी द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए, किससे बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए लिपोप्रोटीनस नेचर। कैसे? वो लिपिड, मतलब लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि लिपिड और प्रोटीन में, लिपिड और प्रोटीन में ये भी होता है कि उसमें जैसे कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो लिपिड फॉर्मेटेड, सब प्रोटीनिशियस कंपोनेंट भी होते हैं, वो भी अलग अलग तरीके के प्रोटीनिशियस कंपोनेंट होते हैं। अभी अपन रोल के अंदर में वो देखेंगे, कुछ एंजाइमेटिक होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, कुछ एक्टिव प्रोटीन होते हैं, तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन। मतलब मोस्टली ये कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सो द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनस इन नेचर। कैसा नेचर है इसका? लिपोप्रोटीनस इन नेचर। अब ये कैसा अरेंजमेंट है इस मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड और प्रोटीन का कैसा अरेंजमेंट है? दैट वन इज एक्चुअली एक्सप्लेन बाय गिविंग अ वन सेल, गिविंग अ वन हाइपोथेसिस इज देयर, फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स। क्या है ये? फ्लूइड मोजाइक मॉडल नाम का एक मॉडल देके इसको, इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया गया है कि कैसे ये सेल मेम्ब्रेन में दोनों चीजें अरेंज होती है। जैसे मैं निकाल लेता हूं थोड़ा सा, एक्चुअली ये ऐसा होता है, इधर से डॉटेड लाइन में बताएंगे अपन, थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं आएंगे। ये जैसे 2 लेयर होते हैं लिपिड्स के, ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, और इसके ऊपर में ये प्रोटीन्स कंपोनेंट होते हैं, इनर साइड में या आउटर साइड में, और कुछ ऐसे भी होते हैं लाइक दिस वन। तो ये है प्रोटीन्स और ये है लिपिड्स। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर में, इस मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में 2 लिपिड लेयर होते हैं, इसलिए बायलिपिड लेयर कहते हैं। और इन बायलिपिड लेयर में क्या होता है कि प्रोटीन्स मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं, वहाँ फिक्स हुए होते हैं। तो इसी फिक्सिंग के हिसाब से वो बायलिपिड लेयर में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, इसके हिसाब से देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर। जो होता है आउटर साइड में उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर होते हैं। जैसे ये इनर सरफेस में, ये आउटर सरफेस में है, तो इसको बोलते हैं अपन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ ऐसे होते हैं कि मेम्ब्रेन्स में फंसे हुए थे, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। कुछ ऐसे होते हैं कि पूरे मेम्ब्रेन को आर पार इधर से उधर तक निकले हुए होते हैं, उसको बोलते हैं टनेल प्रोटीन्स। ये 3 प्रकार ध्यान में रखना है। वैसे वो इंट्रिंसिक में आता है, मगर वो पूरा आर पार होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट के काम आता है। अलग, मैंने पहले बताया कि जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, अलग अलग तरीके के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसी हिसाब से उनका रोल भी होता है उसमें। तो 3 प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से होते हैं ये बायलिपिड लेयर में फंसे हुए। कैसे होते हैं? जो कि आउटर सरफेस या इनर सरफेस के बाहर लगे हुए हो, चिपके हुए से, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स का पार्ट आधा फंसा हो आधा बाहर हो, उसको बोलते हैं अपन इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन ऐसे है कि जो पूरे आर पार, मतलब दोनों सरफेस, इनर सरफेस और आउटर सरफेस को पार करा के इधर उधर से निकलते हैं, उसको बोलते हैं टनल प्रोटीन्स। तो इस हिसाब से ये प्रोटीन्स का अरेंजमेंट होता है। अगर इसको ही फ्लूइड मोजाइक मॉडल के तौर पर देखा जाए तो
जैसे कि समुद्र के अंदर में समुद्र का पानी है और समुद्र के पानी में कुछ आइस पीसेस अपन ने छोड़ दिए या ऑटोमेटिकली वो कोल्ड क्लाइमेट में बन गए समझ लो, तो वो कैसे तरंगते रहते हैं ऊपर, तो आइस पीसेस इज एक्चुअली द प्रोटीन मॉलिक्यूल और समुद्र का जो लेयर होता है पानी का दैट एक्चुअली द लिपिड लेयर। तो ऐसे ही सिचुएशन समझ लो, या आप घर के अंदर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा बर्तन ले लो, जैसे अपन एनी पॉट इज देयर, स्प्रेडिंग पॉट्स आर देयर, इसमें पानी भर लो और कुछ थर्माकोल के पीसेस इसमें डाल दो, राइट। जो ज़्यादा हेवी होगा वो थोड़ा सा बुड़ जाएगा अंदर में, पानी के अंदर में डूब जाएगा, और जो कुछ लाइटर होगा वो पूरा सरफेस करेंगे। जैसे ये सरफेस में तरंगने वाले जो पीसेस होते हैं उसको अपन एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। अब अगर कुछ पानी में आधा डूबा हुआ होता है उसको बोलते हैं अपन इंट्रिंसिक बोलते हैं। मगर इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड, एक साइड तो पूरी ब्लॉक है, एक साइड सरफेस खुला है वाटर का, मगर एक साइड अपन ने वो कंटेनर के वॉल से ब्लॉक कर दिया गया, इसलिए इसमें अपन टनल नहीं बता पाएंगे, मगर इस ढंग से इसका अरेंजमेंट होता है। इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, क्या बोलते हैं इसको अपन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फिर क्या लिखना है अपने को एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल, इट सेपरेट्स द सेल साइटोप्लाज्म टू दैट ऑफ ए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, द सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर, मीन्स इट अलाउज ओनली द सॉलिड पार्टिकल नॉट द सॉलिड पार्टिकल्स। देन केमिकल नेचर देखते हैं अपन। केमिकली द सेल मेम्ब्रेन इज actually formed by lipids and proteins. In that the lipids are bilipid layers in which the proteins are embedded, मतलब proteins उसमें फंसे हुए होते हैं. This one is actually explained by a fluid mosaic model. As according to the fluid mosaic model, the two lipid layers means the bilipid layers having a protein molecule is in three different forms. Some are on the surface of the lipids from external side and internal side, called as the extrinsic proteins. Some are embedded in the lipid bilayer, called as the intrinsic proteins, and some are that goes outside and inside the, means completely pass from inside to outside, that is called as the tunnel proteins. This one is the fluid mosaic model or the structure of the cell membrane is there. Now what is the function of cell membrane? जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, उसी प्रोटीन्स की नेचर के मुताबिक उनका फंक्शन भी होता है। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलो करते हैं बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। इसलिए मेन रोल सेल का क्या है, सेल मेम्ब्रेन का क्या है, तो जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है सेल को नीडी है उसको अंदर लेना, और सेल के अंदर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर छोड़ना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला काम करता है। दूसरी बात क्या करती है कि सेल मेम्ब्रेन गिव पर्टिकुलर शेप टू द सेल, गिव रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, सेल को रिजिडिटी देती है, स्ट्रेंथ देती है, ये भी काम करता है सेल मेम्ब्रेन। सेल को शेप भी देता है पर्टिकुलर। उसके बाद में सेल फैगोसिटिक नेचर भी होता है, सेल मेम्ब्रेन फैगोसिटिक नेचर का भी होता है, क्योंकि जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल जो कि पॉजिटिव है आपके बॉडी को या सेल को, आपके बॉडी को, सेल को, तो उस समय में वो सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में जो भी मटेरियल आएगा उसको वो इन्वेजिनेट करा के अंदर लेके एनगल्फ करता है और अंदर ले जाके उसको किल करता है, इनएक्टिव करता है, इसलिए उसको फैगोसिटिक नेचर भी बोल सकते हैं अपन। ये भी है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स क्या क्या काम करते हैं। सम ऑफ द प्रोटीन्स मेनली प्ले ए रोल टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड इज देयर। Some of the protein acts as an enzyme to carry out the metabolic processes are there. Some of the proteins are energy releasing proteins. कुछ ऐसे होते हैं कि जो एनर्जी का रिलीज करता है, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एनर्जी यूज होती है उसको रिलीज करने का काम करता है। अलग अलग वे से इसका काम है। ये हो गया प्रोटीन्स के। इसमें भी जो लिपिड लेयर है, ये लिपिड लेयर होता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर का। उसमें जो बाहर वाली साइड है ये हाइड्रोफोबिक है और अंदर साइड की ये क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। ये भी फोबिक का मतलब डर, मतलब उसको रिपेल करना, भाग जाना उससे। जैसे वाटर को अपने आप में खींच नहीं लेता है, वाटर को रिपेल करता है, उसको फोबिक बोलते हैं। और फिलिक का मतलब लव, मतलब क्या करता है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। ऐसा ही इस लिपिड लेयर का भी काम है। तो हियर दिस गिव पर्टिकुलर फ्रेमवर्क टू द सेल and play a major role in the cell life is there. Thank you very much. चलो।